آپ کو بہت مس کیا. ویلنٹائن پہ میری کال نہیں ملی. آئی ایم سو سوری. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ جی بالکل مایا، میں کہوں گی آپ سے ارشاد. اس لیے کہ میں نے یہ اپنے گھر میں دیکھا. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے جو سب سے بڑے بھائی جان تھے ان پر میرے فادر فرسٹ بیبی تھے، وہ ان پر میرے فادر بہت بہت فٹی بھی ہے. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا. ہاں ہر بات پہ انہیں روک ٹوک کیا کرتے تھے. اور پلس یہ کہ اگر کہیں پر تھوڑی سی بھی مسٹیک نظر آتی تھی نا تو پٹائی کرتے تھے بہت زیادہ. او گاڈ. سن رہے ہو؟ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ان سے دور ہوتے 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 انہوں نے اسٹڈی کے لیے وہ جگہ سلیکٹ کی جو گھر سے دور تھی. الگ ہو گئے. صحیح کہہ رہی ہیں. انہوں نے جاب کے لیے مایا وہ جگہ سلیکٹ کی کہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. اور وہ انٹینشلی دور دور رہنے لگے. کٹ گئے فیملی سے کٹ گئے. ماں باپ اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے. ہاں. اور میرے فادر نے ریلائز تب کیا میرے بھائی بہن بھی میرڈ ہو گئے اور ان کے بچے بھی ہو گئے. اور ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خود اپنے آپ سے بہت دور کر دیا. ان کو ریلائز ہوا بعد میں؟ ان کو ریلائز ہوا، لیکن مایا اب اتنا فرق آ گیا نا کہ وہ چاہ کر بھی حالانکہ بہت اچھا وہ فل نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے اس کے امپریشن پڑ گیا نا دماغ میں، ان کے وہ فل نہیں ہو سکتا. ہاں کیا بات کی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ان کے ماں باپ نے، دیکھیں اگین آپ دونوں پارٹیز کی ایک چیز میں بتا دوں، ایز این ہم لوگ تو ایڈوائز دے رہے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل بچے ہیں، ماں باپ کیا کہتے ہیں فوراً سے بچے کی انٹینشن کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. ہاں یہ سیکنڈ سٹیج ہے. پہلے تو آپ دیکھ لیں، اب ہم لوگ سٹیجز پہ جاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے بھی رہیں گے. پہلا تو یہ کہ اپنی پرسنالٹی کو انالیسس کریں کہ آپ لوگ میں سے کون ڈومینیٹنگ ہے، کون پری ڈومینیٹنگ ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ڈومینیٹنگ ہو بیڈ کاپ بن جائے، جو ڈومینیٹنگ نہیں ہے دونوں میں سے پارٹنر، دو ایک مائلڈ ہے تو نیچے ان کا سافٹ سا ہے، تو وہ گڈ کاپ بن جائے. یعنی کہ وہ بچے کے ساتھ اچھا رہے، فرینڈلی رہے. اور جو بیڈ کاپ ہے وہ غصے میں رہے یا اسٹرکٹنس دکھائے کہ بچے کو ایک کولڈ شولڈر بھی ملتا رہے اور ایک وہ بھی ملتا رہے. دیکھو وہ والی بات ہوتی ہے کہ اگر اماں سے مار پڑ رہی ہے تو ابا پیار ابا کے پاس جائیں گے کہ ماما نے مارا، مار دیا، بیٹا کوئی بات نہیں. ان کو ایک بندہ چاہیے جو اسٹرکٹ ہو بچے کو، اور ایک چاہیے جو بہت اچھا ہو گھر کے اندر. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے عمر کوٹ سے. السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. مایا بھی شریلا بات کر رہی ہوں عمر کوٹ سے. کیسے ہو آپ شریلا؟ خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک. آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک مست ایک دم. اچھا وہ ٹائم کے دن ہمیں نا کال نہیں ملا اور ہم نے آپ کو بہت بہت مس کیا. یار یہ سب شکایت کرتے ہیں. عروج تم کیوں کرتی ہو ایسا؟ عروج کاٹتی ہے کال آپ کی. کیسے بولے عروج تیری میں کسی میں بتاؤں کسی تم نے میری کال اٹھائی. یہ کاٹتی ہیں آپ کی کال، یہ کاٹتی ہیں. یہ مایا سو رہی تھی میں کیا کروں، ہے نا جی. شانیلا کیا کہیں گی؟ جی مایا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی 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 اگر آپ دیکھنا چاہتے کیا بابا بولو بولو. بس مجھے نا آپ کی یہ ڈریس بہت اچھی لگتی ہے. کیا اچھی لگتی ہے؟ فریشنس. آپ جو آپ پہنتے ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہے. اوہ واو، تھینک یو میری جان، تھینک یو سو مچ. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نمونہ بنایا تھا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ لوگوں میرے نیچر میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اسے میرا یقین کرے کوئی کمال نہیں ہے. ایک ہی آئٹم پیدا ہوا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ہی کافی ہے. ایک سنبھالنا آپ لوگ، ایک سنبھالنے دنیا ایک سنبھالنے کافی ہوگا. ہاں جی ہاں بولو. کمنگ بیک. دوسرا اسٹیج یہ ہوگا کہ دوسرا اسٹیپ جو میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا ریلیکس اسٹیج تک نہیں پہنچ صحیح بات ہے. ہاتھ ٹوٹ جائے ماں باپ ویٹ کریں گے دوسرا اسٹیج کا جی مایا چلے گی تو ریلیکس. اچھا اچھا دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ نہ کریں. صحیح ہے. اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہم فوراً سے کیا کہتے ہیں تم پڑھنا نہیں چاہتے تھے اس لیے تم فیل ہوئے. ہاں آپ کو کیا پتا اس سے اپنی انٹلیکٹ کی وجہ سے کتنی محنت کی ہوگی. لیکن ہم فوراً سے کہتے ہیں آپ دیکھیں جو ہی بچہ فیل ہوگا ماں باپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر ہے. تو میں کہہ رہی تھی نا پڑھ لو. اور اس کے علاوہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر میں اپنی بھانجیوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں گئی ہوں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سامنے ٹیچر برائی کر رہی ہے، آپ کی ٹیچر برائی کر رہی ہے، آپ سنیں اس کو. ہاں اس کو گھر پہ بچے سے گھر پہ جا کے بات کریں. ادھر ہی شروع ہو گیا بچوں پہ. یہاں پورا دن ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے. اب وہ بچے کی عزت نفس
तबाह हो गई। वो बेसिकली बच्चे को नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को सारे बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं ना। भाई आपको पढ़ाने का काम है, आप पढ़ाएं बच्चे को, टाइम दें। कि आप बच्चे की जब इंटेंशन पे, अगर आपकी भी कोई इंटेंशन, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक चीज टूट गई और मैं कहूँगी माँ तुमने जानबूझ के तोड़ी है, तो आपके दिल में होगा ना अजीब बेवकूफ औरत है, हाँ का इल्जाम लगाई जा रही है, एक बात होती है, मेरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आप इंटेंशन को दिखा नहीं सकते किसी को। सही बात। बच्चे भी उसका कंफ्यूजन स्टेज में आते हैं कि हम पढ़ना चाहते थे, हम नहीं पढ़ पाए या वो रिजल्ट नहीं ला पाए जो कोई और ला पढ़ सकता है। सही बात। फर्स्ट एक ही बंदा आएगा। आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 की क्लास के अंदर आपका बच्चा हमेशा फर्स्ट है, एक दफा को एक। सही बात है। ऑलवेज बी अ वन विनर। सही बात है। तो आपने बच्चे को उसमें थोड़ा सा रूम दें और उसकी इंटेंशन पे डाउट ना करें। ना करें। हो सकता है जो फर्स्ट आ रहा है बच्चा वो जिंदगी को इतनी अच्छी तरह हैंडल ना कर पाए जो आपका बच्चा कर पाए। वेरी ट्रू। नहीं, आई हैव टू अग्री ऑन दिस कि भाई बच्चों को तो दूसरों के सामने करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा इनको बात करती हूँ, जो भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनको अक्सर कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाए पूरी तरीके से, बिकॉज दैट्स नॉट राइट। आपको बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि किसी भी थर्ड पर्सन के, चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटा उसके सामने भी अपने बच्चे को बेइज्जत ना करें। सही बात है। इस तरीके से आप इवन फ्रेंड्स में या जब एम्प्लॉइज होते हैं वो भी आपस में दूसरे के सामने जो है ना वो नहीं करते, किसी को डांटते नहीं, जलील नहीं करते ना कि किसी की खामियों को आप छुपाएं और अगर अच्छाई हो तो जोर जोर से उसको और वो कहे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारी आवाम भी शामिल होगी, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों शामिल होंगे। आपने आज टॉपिक हमारा ये है कि आपने कभी किसी वालिदैन के बेजा पाबंदियों की वजह से किसी औलाद को जिद्दी या बागी होते हुए देखा है, तो प्लीज बताइएगा सिचुएशन क्या थी, बिकॉज सिचुएशन को हम सामने जरूर लाना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी एक बहन मिसेस आफ्ताब ने कॉल की, उन्होंने बताया और भी कॉल्स आई। एक और कॉलर है, जुबैदा है, कहाँ से? कराची से। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम माया खान, कैसी है सर? और आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह करम। मैडम कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? हुक्म। हाँ, मेरी कहती मेरे बच्चे जो है ना बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छी तरह उनको पाला है। वेरी गुड माशाल्लाह। और बहुत अच्छा तरह उठाया, शैतान बिल्कुल भी नहीं थे। वेरी गुड। अब मुझे बताएं आप कि वालिदैन की बेजा पाबंदियां बच्चों को क्या जिद्दी बनाती हैं? हाँ जिद्दी बनाती है ना। तो ऐसे वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो यही कहना चाहेंगी बच्चों को ना बहुत ज्यादा उनको ना मारना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच। इनका नंबर जरूर लीजिएगा। हज़रात यहाँ पे वक्फा लेते हैं, बस वक्फा ले रहे हैं जनाब। हम यहाँ से वक्फा लेते हैं, यहाँ पर वक्फा लेते हैं, गलत उर्दू, यहाँ पर वक्फा लेते हैं। मेरा अक्सर आ गया नहीं इमाम अली बन गई मैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात बहुत सारी अवाम के साथ, और होंगे माँ बाप और बच्चे, और होगी कुछ बातचीत। तो हमारे साथ रहेगा। वंस अगेन सुबह बखैर। आप कैसे बैठे आज? उठ के तमीज से उधर बैठे, आप जमीन पे आके बैठ गई। क्या है आपका? बाबा मुझे रोकते रहती है। हाँ मैं बैठ जाता हूँ। तुम आ जाओ, मसला क्या? बड़े मुश्किल सीट है बेटा, ये संभालने पड़ती है। सीट प्रेसिडेंसी मुश्किल सीट है। बहुत दिनों बाद एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, हमारे साथ रहिए। आज का सवाल ये है, क्या बेजा वालिदैन की रोक टोक से आपने कभी किसी बच्चे को बागी या बिगड़ते हुए या जिद्दी होते हुए देखा है या बदतमीज होते हुए देखा है? जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हमारे साथ अवाम की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो ऊपर बैठी हैं वो सब बच्चियां हैं, नीचे बैठे हैं वो सब बच्चे हैं, और बीच में जो माँ बाप बीच में सैंडविच जो का पैटी जो होता है वो बने हुए हैं और बच्चों के बीच में। तो हमारे साथ एक ऐसी कुछ हमारी कुछ सिचुएशन है, हमें कॉल करें। आज का सवाल, क्या वालिदैन की बेजा रोक टोक से बच्चे जिद्दी या बदतमीज या बागी हो जाते हैं? बच्चों का माइक है, बच्चों का माइक ये रहा। माइक क्या लंच बॉक्स में इस्तेमाल करोगे? आज का सवाल है कि वालिदैन की बेजा पाबंदियों और रोक टोक की वजह से क्या आपने किसी बच्चे को बागी और जिद्दी होते देखा है कभी? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। पहले हम वालिदैन को, आप पहले नई नस्ल, अपना नाम बताइएगा। सना जी। बागी तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सी चीजें भी इनमें आ जाती हैं। सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, किसी फॉर इंस्टेंस कोई गैदरिंग हुई
है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब आप किसी और के घर गए हैं तो इट्स नाइस कि आप बच्चों को रोकें कि किसी की चीज ना हो जाए, किसी के नुकसान ना हो जाए, किसी के बच्चे को ना लग जाए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप बहुत ज्यादा करना शुरू कर दें कि बस आप बैठे हैं तो खींच के पकड़ के हाथ पकड़ के आपने बच्चे को अपने साथ बिठा दिया, नहीं तुमने नहीं जाना कहीं पे, यहीं खड़े रहो। और ये कोई भी एज ग्रुप हो सकता है या बचपन में? तो बचपन ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन बच्चे तो ज्यादा ऐसा आप लोगों की जो एज है उसमें जब माँ बाप थोड़ा सा रोक टोकते हैं तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, ऐसा पता नहीं ऐसा हमारी इंसल्ट हो गई हो। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? हार्डेस्ट टू हैंडल, जैसे ही बच्चा 13 क्रॉस करता है तो पेरेंट्स की परेशानी और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे का एक्सपोजर बढ़ जाता है, दूसरी चीजों में जाना, इधर होना उधर होना, तो इन द सेंस और टेंशन बढ़ जाती है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, रोक टोक कभी आपने कभी ऐसा इंसिडेंट होते हुए देखा या आपके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ है कि माँ बाप ने कभी बेजा जो है वो सुना दिया हो और आपके खड़े खड़े हर फैमिली में ये तो होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इन द सेंस अल्हम्दुलिल्लाह जब भी समझाया आराम से समझाया, यानी अगर पब्लिकली नहीं समझाया, समझा दिया कि बस नहीं करो आप, ठीक है, इतना दिया हुआ था कॉन्फिडेंस कि बच्चा खुद समझे कि मेरे पेरेंट ने मुझे एक दफा मना कर दिया है तो इसका मतलब ये चीज अच्छी नहीं है और मुझे फिलहाल रुक जाना चाहिए। लेकिन हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि बच्चा क्या सोचता है ताकि हम उसकी इस्तेमाल कर सकें। हम कॉलर भी आ जाए। हर दफा बच्चों के कहते हैं ना बात की वर्थ नहीं रहती, जो आप हर चीज से नहीं करेंगे ना तो बच्चों को लगा मेरे माँ बाप तो हर चीज से ही नहीं बोलते हैं तो मैं कर ही लूँ, नहीं तो होना ही है तो मैं कर ही लूँ। अपने बच्चे को अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें, ठीक है, अपनी बात की वर्ड जरूर रखें कि आप। और एक और चीज, अपने बच्चे को जो आप करने का कह रहे हैं, आप अगर अपने बच्चे को कहते हैं रात को 10 बजे सोए और आप खुद 1 बजे तक टीवी देख रहे हैं तो आपका बच्चा सॉरी वो कभी नहीं सोएगा, सॉरी वो कभी नहीं सोएगा। वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चे को चाह रहे हैं, एक देर लेडी है नो मतलब देयर इज लेडी आई नो, हर नेम इज, कॉलर भी आ जाए, हर नेम इज आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। वो खुद बेसिकली व्हेन शी वाज कंसीव्ड द किड, और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इस्लाम की तरफ जाएं। अच्छा, ठीक है। वो लड़की पहले लोग कहते हैं, मैं उसको बहुत पहले से नहीं जानती, जो उसके फैमिली वाले कहते हैं वो पूरा दिन टीवी देखती थी, गाने सुनती थी, शी वाज इनटू फैशंस एंड इनटू एवरीथिंग, सब कुछ था। मतलब कहते थे वो लड़की कभी इस तरफ नहीं आ सकती, कहते थे लोग। अच्छा, जब नेचुरली जब उसका बच्चा पैदा हुआ उसने अपने बच्चे को देखा, फर्स्ट टाइम हाथ में उठाया तो उसको पता नहीं क्या हुआ, कोई फीलिंग आई, दैट गर्ल टर्न्ड। अब वो अपने बच्चों को बेबी टीवी दिखाती है तो खुद भी कुछ भी नहीं देखती। यही तो होता है, साथ स्कूलिंग ऐसी ही होती है बच्चों की, ऐसा नहीं पीछे बैठ के वो ड्रामे देखते हैं। पीछे बैठ कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मैं सकीना बात कर रही हूँ कराची से। जी सकीना, कैसी हैं? आवाज कम हो रही है आपकी, आप टीवी पे आवाज सुन रही हैं हमारी? अच्छा, मेरा नाम नहीं, टीवी की आवाज बंद, टीवी की आवाज बंद तो बात करूंगी वरना नहीं करूंगी। देखा, ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड। आप मेरी बात सुन रहे हो, अपनी आवाज सुन रहे हो, मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे 4 लोग और भी हैं। अच्छा जी, खवातीन हज़रात आइए, प्लीज आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। अब्दुल माजिद। और बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि पेरेंट्स को अब बच्चों में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा गलती तो हर कोई करता है, कोई फरिश्ता तो है नहीं, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उसको एक दफा समझा रहा हूँ और एक दफा उसको जाने तो दूं कम से कम उस जगह। अब आप उसको बिल्कुल ही उस एनवायरनमेंट में जाने, मतलब अब जैसे फ्रेंड्स हैं वो रात को निकलते हैं दोस्तों के साथ खाने पीने कहीं चले गए, आप उसको बिल्कुल ही नहीं जाने दोगे कभी जिंदगी में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि फ्रेंड्स की गैदरिंग क्या होती है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, मतलब तफरी बंदा कैसे करता है फ्रेंड्स के साथ, करते हैं माँ बाप। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक दफा उसको भेजें और मतलब एक रखें थोड़ा बहुत के यार उस पर नजर रखें, पहली दफा उसको एक ट्राई तो दें कि वो जाए बाहर, पेरेंट्स जाने ही नहीं देते। मैं वालदाओं से पूछूंगी यहाँ पर कि मुझे बताइए आप लोग जो है ना बेवजह की रोक टोक बच्चों पे क्यों करती हैं? क्यों बच्चों को ऐसे होते हैं, नहीं करो, ये नहीं करो, फलां नहीं करो, धमाका नहीं करो, क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जो आप लोग, या आपने कभी देखा हो ऐसी माओं को? प्लीज मुझे बताइए, आई वांट टू नो। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस समझते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंस से अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि यानी कि कभी बच्चा ऐसे कि बहुत ज्यादा अपने आप को करने लग जाता है कि मैं लाडला हूँ और हर बात मेरी मानी जाए, लेकिन पेरेंट्स ही कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए और बच्चा कहता है हमारी बात मानी जाए, लेकिन जब वो बाहर के माहौल में जाता है बच्चा तो वो दूसरों की बातें सुनता है और कहता है उसके पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि घर का माहौल अगर अच्छा होता है तो वो बच्चा भी यानी कि माँ बाप के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी ऐसी चीजों से रोका जाता है। जैसे कि हमें कॉल भी आई थी शुरू में जिसमें एक थी कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेट पे नहीं बैठो,
موبائل فون بہت استعمال کرتے ہو. مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو کس بات سے روکتے ٹوکتے تاکہ وہ چیزیں وہ ٹاپکس وہ ہائی لائٹ ہو. وجوہات خواتین و حضرات یہاں پہ لیتے ہیں وہ ان وجوہات کے موڑ پر کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جب والدین اپنے میں ادھر ہوں نا رائٹ میں ادھر ہوں ہاں تو والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ بے جا روک ٹوک کرتے ہو کیا وجوہات بنتی ہیں. عروج نے بھی اور بچوں نے بھی بہت کچھ کہنا ہے. اس وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ. ویل بی رائٹ بیک ونس اگین. گڈ مارننگ.